بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پیٹرول چوری کا بڑا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ 8,000 میٹرک ٹن پیٹرول کسٹم ہاؤس کے چوہے پی گئے۔ آئل انڈسٹری میں مبینہ ملی بھگت سے 2 ارب 38 کروڑ کا پیٹرول چوری کر لیا گیا۔ ڈیوٹی ٹیکسز لیوی کی مد میں قومی خزانے کو 1.25 ارب روپے کا نقصان۔ درآمدی کنسائنمنٹ کی جانچ پڑتال کے دوران بڑا انکشاف۔ نجی کمپنی نے 18,000 سے زائد ٹن پیٹرول منگوایا۔ ویئر ہاؤس میں کمپنی کے پاس تقریباً 10,000 میٹرک ٹن پیٹرول کا اسٹاک ملا۔ آڈٹ رپورٹ نے تیل انڈسٹری میں کھلبلی مچا دی۔ کسٹم کورٹ میں مقدمات درج کر لیا گیا۔ پیٹرول چوری کا بڑا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ آئل انڈسٹری میں مبینہ ملی بھگت سے 2 ارب 38 کروڑ کا پیٹرول چوری کر لیا گیا۔ ڈیوٹی ٹیکسز لیوی کی مد میں قومی خزانے کو 1.25 ارب روپے کا نقصان۔ درآمدی کنسائنمنٹس کی جانچ پڑتال کے دوران بڑا انکشاف۔ نجی کمپنی نے 18,000 سے زائد ٹن پیٹرول منگوا لیا۔ ویئر ہاؤس میں کمپنی کے پاس تقریباً 10,000 میٹرک ٹن پیٹرول کا اسٹاک ملا۔ آڈٹ رپورٹ نے تیل انڈسٹری میں کھلبلی مچا دی۔ کسٹم کورٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ 8,000 میٹرک ٹن پیٹرول کسٹم ہاؤس کے چوہے پی گئے۔ آئل انڈسٹری میں مبینہ ملی بھگت سے 2 ارب 38 کروڑ کا پیٹرول چوری کر لیا گیا۔ ڈیوٹی ٹیکسز لیوی کی مد میں قومی خزانے کو 1.25 ارب روپے کا نقصان۔ درآمدی کنسائنمنٹس کی جانچ پڑتال کے دوران بڑا انکشاف۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں گزشتہ رات ہونے والی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ مختلف علاقوں میں ہلکی سے معتدل بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ محکمہ موسمیات نے آج بھی شہر میں جزوی ابرآلود موسم اور کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا۔ گرمی اور ہب سے ستائے شہریوں نے بارش کو خوشائند کہا۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ بائک رائیڈرز بھی شدید مشکلات کے شکار۔ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے اخراجات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کرایوں میں معمولی اضافہ بھی مسافر قبول نہیں کرتے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا، عوام پریشان، بائک رائیڈرز کا کاروبار ٹھپ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد بائک رائیڈرز کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رائیڈرز کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے براہ راست اثر روزگار پر پڑتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں خاطر خواہ کمی ہونا چاہیے۔ اگر پیٹرول 200 سے 250 روپے فی لیٹر ہوا تو ہمارا روزگار بہتر ہو سکتا ہے۔ اکثر مسافر اضافی کرایہ ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ آئے دن یہ پیٹرول کو بڑھا دیتے ہیں، 10 روپے کم کرتا ہے اور 20-30 روپے یہ ہر روز بڑھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ رائٹ ہمیں جو ہے وہ بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اگر کوئی رائٹ آ جائے تو ہم انہیں کرایہ بڑھا کر بتاتے ہیں، پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ زیادہ لے رہے ہیں، تو ہم جب انہیں بتاتے ہیں پیٹرول بڑھ گیا ہے تو پھر آگے سے آپشن ہوتے ہیں، بہت سی ہمیں رائٹیں جو ہے ہمیں چھوڑنی پڑتی ہے اس وجہ سے۔ دیکھیں، پیٹرول جیسے حساب سے بڑھ رہا ہے تو اس کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا، اور نہ حکومت کو کہ عوام کی کوئی فکر ہے۔ اب جو تنخواہیں جو تنخواہوں پہ رہتے ہیں وہ تنخواہ وہی کی وہی ہے، اور پیٹرول جو ہے، میں ابھی آتا ہوں اورنگی ٹاؤن سے، میرا تقریباً 400 سے 450 روپے پیٹرول لگ رہا ہے اور 40,000 تنخواہ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس میں مجھے کیا بچے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ شہریوں کے روزگار کو متاثر کر رہا ہے، جبکہ بڑھتے ہوئے اخراجات اور محدود آمدن نے ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان کے مطالبات پر کیا اقدامات کرتی ہے۔ کیمرامین اجلان کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ کراچی کے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں چوتھی انٹرنیشنل فیملی پلاننگ سمٹ ماں رہے سلامت کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر بورڈز اور جامعات اسماعیل راہو بھی موجود تھے۔ سمٹ میں فیملی پلاننگ، زچہ و بچہ کی صحت اور جدید طبی سہولیات کے فروغ پر زور دیا گیا۔ رابعہ الصدیق کی رپورٹ۔ صحت مند ماں، محفوظ بچہ، خوشحال معاشرے کی بنیاد، خاندانی منصوبہ بندی، صحت مند مستقبل کی ضمانت۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں چوتھی انٹرنیشنل فیملی پلاننگ سمٹ ماں رہے سلامت منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر صحت عذرا پیچو نے کہا کہ حکومت خاندانی منصوبہ بندی کی فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی تعداد میں اضافہ، لائنگ ایکٹنگ مانے حمل طریقوں کی ترویج، بعد ازاں زچگی فیملی پلاننگ کاؤنسلنگ کے تمام طبی مراکز میں مانے حمل ادویات کی بلا تعطل دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ That it is mandatory that every third C-section پر TL ہونا چاہیے۔ So this is one of the legislations that I'm going to forward کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ماؤں کو بچائیں تو tubal ligation is mandatory for every third 3 sections اگر ہو گئے ہیں
So we have to do that. वजीर बोर्ड जामियात इस्माइल राहो ने कहा, माँ रहे सलामत जैसे प्रोग्राम न सिर्फ अवाम में शऊर उजागर करते हैं बल्कि नौजवान डॉक्टर्स और तलबा को भी जदीद तिब्बी रुझानात से सीखने का मौका फराहम करते हैं। निजी इदारे सेहत के शोबे में हुकूमत के साथ मिलकर किरदार अदा करें। सेहतमंद माँ और महफूज बच्चा ही मजबूत और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है। सबसे अव्वल और सबसे पहले जो माँ की सेहत है वो सबसे पहले है और उसकी अहमियत और अफादियत जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और माँ की सेहत को बचाना और उस तक माँओं तक जो फैमिलीज़ हैं, वालदाएँ हैं और जो हमारी औरतें हैं उन तक ये आगाही पहुंचाने के लिए हम सबको उसमें फ़र्ज़ अपना पूरा करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। चाहे वो हुकूमतें हैं, चाहे हुकूमतों के इदारे हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों या उनका जो स्टाफ होता है सारा वो हो। माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद माँ, महफूज बच्चा और मुतवाज़न खानदान रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। कैमरामैन अहमद के साथ राबिल सदीद, सिटी 21। जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने खिदमत के इश्तराक से अल हिलाल सोसाइटी में फ़िल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। फ़िल्टर प्लांट ATM कार्ड से ऑपरेट हो सकेगा। इलाका मकीन कार्ड के ज़रिए भी 2 रुपये लीटर साफ़ और शफाफ पानी हासिल कर सकेंगे। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। और जिना टाउन की मुश्तरका काविश साफ पानी हर घर तक पहुंचाने की एक और पेशरफ्त। जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने अल हिलाल सोसाइटी में फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, फिल्टर प्लांट ATM कार्ड सिस्टम के जरिए ऑपरेट होगा। शहरी कार्ड इस्तेमाल करके बोतलों में साफ पानी हासिल कर सकेंगे। और बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है जिसको हम ATM नॉर्मली मशहूर होता है पैसे निकालने के लिए, लेकिन ये ADM है, ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन के पानी यहाँ से डिस्पेंस कर सकते हैं आप। ये मेरे हाथ में कार्ड है, इस कार्ड के जरिए वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। 24/7 ये फैसिलिटी, चूंकि ऑटोमेटिक है तो 24/7 ये फैसिलिटी अवेलेबल है। चेयरमैन अल हिलाल सोसाइटी मोहम्मद ज़िशान अख्तर का कहना है कि हम अल खिदमत के शुक्रगुजार हैं कि हम सिर्फ 2 रुपए फी लीटर के हिसाब से साफ और शफाफ पानी फराहम किया जाएगा। ये तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी हुई है, जमात के ताउन से, अल खिदमत के ताउन से। उसके हिसाब से जो पानी है 24 आवर्स आपको मिल सकता है। दूसरा ये है कि पानी की क्वालिटी वो है जैसे आप एक्वाफीना या नेस्ले या जो दूसरी आप कंपनी आप समझते हैं जो बेहतर है, उनसे बहुत बेहतर है ये। अल खिदमत वॉश प्रोग्राम के डायरेक्टर सैयद गौरुल इस्लाम का कहना है कि मंसूबे का मकसद शहरियों को कम कीमत और मयारी पानी फराहम करना है। उसी के तहत ये ऑपरेट करती है और कार्ड है और पानी जो है वो 2 रुपये लीटर है और जो कि किसी भी स्टैंडर्ड पानी से कम नहीं है। अल खिदमत की इस काविश को इलाका मकीनों ने सराहते हुए कहा कि साफ पानी जिंदगी है और अल खिदमत का इलाका मकीनों के लिए ये ताउन सदका जारिया साबित होगा। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया, जहां साबिक तलबा और स्कूल स्टाफ के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। साबिक तलबा ने सुबह की असम्बली में भी शिरकत की और बरसों बाद अपने तालीमी इदारे में लौट कर यादों को ताज़ा किया। राबेल सदीद की रिपोर्ट। क्रिकेट ने फिर से जोड़ दी पुरानी रफाकतें। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल का ग्राउंड एक बार फिर माजी की खूबसूरत यादों से आबाद हो गया, जहां सालाना स्पोर्ट्स डे के मौके पर 1986 बैच के साबिक तलबा और स्कूल स्टाफ आमने सामने आए। साबिक तलबा ने खेल के साथ साथ सुबह की असेंबली में भी शिरकत की और अपने तालिबे इल्मी के दिनों की यादें ताज़ा करते हुए असातिज़ा और साथियों से मुलाकात की। तकरीब के मुंतज़मीन का कहना था कि 1986 बैच के तलबा क्रिकेट से खुसूसी दिलचस्पी रखते थे। इसी रिवायत को जिंदा रखने और साबिक तलबा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए इस दोस्ताना मैच का इनेकाद किया गया। हमारी 165 इयर्स की सेंटेनरी सेलिब्रेशंस थी, तो ये आए और ये बहुत एंथुजियास्टिक थे कि अपने स्कूल वापस आए और प्रिंसिपल को ये बताया कि इनके बैच में ज़्यादातर ये लोग क्रिकेटर्स थे। तो प्रिंसिपल ने फिर सजेस्ट किया कि हम लोग क्यों नहीं आप स्टूडेंट्स और हमारा स्टाफ एक मैच खेले। तो इस तरह ये आइडिया आया एंड टुडे वी आर होल्डिंग दिस मैच। साबिक तलबा ने कहा कि कई दिहाइयों बाद इसी मैदान में दोबारा क्रिकेट खेलना और अपने असातिज़ा और दोस्तों से मिलना उनके लिए नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है। उनके मुताबिक ऐसी सरगर्मियां ना सिर्फ यादें ताज़ा करती हैं बल्कि साबिक तलबा और इदारे के दरमियान ताल्लुक को भी मजीद मजबूत बनाती हैं। जी मैच आपके सामने है एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। वी गो टू द फ्लैशबैक ऑफ आवर ओल्ड मेमोरीज। क्लास 1 में हमने यहाँ पर एडमिशन लिया था, देन वी वर बैक हियर इन द क्लास 10th।
1 to 10th हमने किया and we are feeling fantabulous. We are thankful to all the staff, all the fraternity to having a wonderful match arranged. आज 40 years के बाद हम सेम उसी असेंबली में खड़े हुए हैं, हमने वही एंथम पढ़ा, उसी तरीके से सारी लाइन अप किया और इट्स हार्डली टू एक्सप्रेस कि जी व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ गोइंग ऑन द सेम पिच वी यूज्ड टू प्ले वे बैक, लेकिन इट इज़ अ मतलब इट इज़ अ awesome feeling, we cannot express it. शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इसी नौयत के तकरीबात का इनेकाद जारी रखा जाएगा ताकि मुख्तलिफ बैचेस के साबका तलबा एक दूसरे से राब्ते में रहें और अपने तालीमी इदारे से वाबस्तगी मजीद मजबूत कर सके। कैमरामैन अमजद के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। एथोपियाई एजाजी कौंसलेट में मलेशिया और इराक के सुबकदोश काउंसल जनरल्स के एजाज में अलविदाई इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में सफारती, कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। सफारतकारी का खूबसूरत अंदाज सबकदोश कौंसल जनरल्स की अलविदाई शाम यादगार बन गई। इथोपियाई एजाजी कौंसलेट में मलेशिया और इराक के सबकदोश कौंसल जनरल्स के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिफारती, कारोबारी और समाजी शख्सियात ने I open a bridge between Iraq consulate and Ethiopian consulate here in Karachi. I hope in the future he new post in Baghdad inshallah. डायरेक्टर जनरल वजारत खारजा कराची लीजन ऑफिस इरफान सोमरो और सनतकार खालिद तवाब ने कहा कि दोनों सबकदोश कौंसल जनरल्स ने अपने अपने ममालिक और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया, जिसे हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। It's also in the league of its own. Despite being a big city, the people of Karachi find time to maintain and keep up and the values, our national values of hospitality. ये इनकी कोशिशें हैं कि एक फैमिली की तरह लोग हैं, और अभी मैं बात कर रहा था चाहे फेयरवेल इस तरह हो रहा है, चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, हर आदमी जो है इस शहर में वो इनको इन्वाइट करना चाहता है। तकरीब में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर साकिब सदाकत, अफगानिस्तान के कौंसल जनरल सैयद अब्दुल जब्बार और पाक मलेशिया बिजनेस फोरम के सदर शाहिद जावेद समेत सिफारती, कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और सबकदोश सफारतकारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद फराज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। एक्सपो सेंटर कराची में तीसरी 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। तकरीब में काउंसल जनरल्स, तिब्बी माहिरीन और शोबा सेहत से वाबस्ता शख्सियात ने भी शिरकत की। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। सेहत के शोबे की जदीद जिद्दतें, तब्बी सहूलियात की नई जहतें और माहिरीन एक ही छत तले। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हो गया। 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने किया। एक्सपो में मुल्क भर से तिब्बी माहिरीन, हेल्थ केयर इदारों, बैनुल-अक़वामी नुमाइंदों और शोबा सेहत से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि सेहत का शोबा तिजारत नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का मुकद्दस फरीज़ा है। उन्होंने सफाई, एहतियाती तदबीर और मयारी तिब्बी सहूलियात की फरहमी पर जोर दिया। बोले कि सेहत सहूलत प्रोग्राम की बहाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवाम दोस्त विजन की अक्कास है। और सेहतमंद माशरा तभी बनता है जब उसे आसूदगी हासिल हो। आखिर में एक दोस्त ने और कहा, हेल्थ इंडस्ट्री इट इज ए हेल्थ, वी आर नॉट इंडस्ट्री। Industry is something different, health is something different. We are here to cure the disease. We are not here to collect the wealth and daulat. वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अरशद कायम खानी ने कहा कि 20 करोड़ आवाम हेल्थ कार्ड प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। उनका कहना था कि नेशनल हेल्थ टूरिज्म वर्किंग टास्क फोर्स मुस्तकबिल में मुल्की मईशत और तिब्बी शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। पहले गुजारिश तो ये कि आपको वज़ीर आज़म सेहत कार्ड जो है वो पाकिस्तान के 25 में से 20 करोड़ पाकिस्तानियों को ये सहूलत मुहैया कर रहा है कि वो अस्पताल में दाखिले की सूरत में अपने कौमी शनाख्ती कार्ड को हमारे 800 से ज़ायद सरकारी और निजी पैनल हॉस्पिटल में दिखा के अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तकरीब से डॉक्टर फरहान ईसा, डॉक्टर जावेद अकरम समेत दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया और सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी, तहकीक और बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली।
We are there at the hall number 1 at the booth 16 if you want to have overlook or more clarification regarding the next generation sequencing. First time in Pakistan, indigenous medical quality medical devices manufacturing has started. I was very happy to see the owner of Alson here who have got ventilators of international standards. ایکسپو میں 45 سے زائد قومی و بین الاقوامی ایگزیبیٹرز نے اپنے جدید طبی آلات، ادویات اور ہیلتھ کیئر مصنوعات کے اسٹالز قائم کیے ہیں، جہاں طبی شعبے سے وابستہ افراد بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں۔